चालू किया था। सेक्शन 122 हमने स्टार्ट किया था, राइट? हाँ हाँ। तो इसे कंक्लूड कर लें। हम्म। तो पढ़ा जाए। हाँ। 122 subsection 1 application for bankruptcy by the debtor shall be accompanied by a the records of insolvency resolution process under chapter 3 of part 3। वो जो P3C3 वाला वो जो बोल रहे थे उसके हिसाब से करने का है। बी सेटलमेंट ऑफ the settlement of affairs of the debtor in such form and manner as may be prescribed on the date of application for bankruptcy। और सेटलमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ डेटर जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो है बैंक्रप्सी कोड का उसके हिसाब से होगा। सी a copy of order passed by the adjudicating authority under chapter 3। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सच फॉर्म एंड मैनर, ये हम रेगुलेशन में स्टडी करेंगे। अभी हाँ हाँ। रेगुलेशन की ओर नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम्म। उसे अलग से डील करेंगे। रेगुलेशन सी में एक। कौन से फॉर्म अप्लाई होगी, क्या हाँ सारे रूल्स होंगे, देखेंगे। हाँ। सी a copy of the order passed by the adjudicating authority under chapter 3 of part 3 permitting the debtor to apply for bankruptcy। वो बैंक्रप्सी के जो लिए अप्लाई कर दिया कि भाई हमने जो हाँ आईआरपी है, हाँ हाँ आईआरपी को हमने रिजेक्ट कर दिया तीन अलग हाँ अलग हाँ स्टेजों में। हाँ हाँ। उसका जो ऑर्डर है उसको ये करके to the debtor may propose an insolvency professional as the bankruptcy trustee in the application for bankruptcy। और डेटर अपना माने जिसके थ्रू पी इंसॉल्वेंसी थ्री में प्रोफेशनल। पी थ्री हाँ सी थ्री में भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था जो कि उसकी इंसॉल्वेंसी करा रहा था। हाँ उसी हाँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को वो अपना प्रपोज कर सकता है, ऐसा हाँ। ये इस प्रोविजन में कहा गया है। 3 the application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed। हाँ, तो इसके लिए सच पी एन एच में भी प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड जहाँ लिखी हुई है वहाँ रूल्स देखेंगे, और हाँ। स्पेसिफाइड जहाँ है वहाँ हम रेगुलेशन चेक करेंगे। ठीक है। हम्म। तो सेक्शन 3 के लिए, सब सेक्शन 3 के लिए हमें रेगुलेशन हम्म। की ओर जानी होगी। हाँ। फिलहाल आगे 4 पढ़ें। 4 the an application for bankruptcy by the debtor shall not be withdrawn without the leave of the adjudicating authority। यस, अ, ऐसा है कि हाँ हमने फाइल कर दिया, डेटर ने फाइल कर दिया और हाँ उसे छोड़ दिया, उसे नहीं इच्छा है और आगे बैंक्रप्सी की काम नहीं है, तो उसकी प्रोसेस हाँ पूरी करानी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। है हाँ। ना? इसमें एडजुकेट। हाँ। सबसेक्शन 4 तक थे। अभी हम्म। क्रेडिटर की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिटर एप्लीकेशन कैसे करेंगे? हम्म। Subsection 1 the application for bankruptcy by the creditor shall be accompanied by a the records of insolvency resolution process undertaken under chapter 3। B a copy of the order passed by adjudicating authority under chapter 3 permitting the creditor to apply for bankruptcy। C details of debts details of debts owned by the debtor to the creditor as on the date of the application for bankruptcy and such other information as may be prescribed। Subsection 2 an application under subsection 1 made in respect of debt which is secured shall be accompanied with
A. A statement by the creditor having the right to enforce the scrutiny that he shall, in the event of bankruptcy order being made, given up his security for the benefit of all the creditors of the bankrupt, or Yes. a statement Hmm. by the creditor showing that the application for bankruptcy is only in respect of unsecured part of the debt and an estimated value of unsecured part of the debt. 3. If a secured creditor makes an application for bankruptcy and submits a statement under clause B of section 2, the second and un, the Secured. secured and the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts. 4. The creditor may propose an एक चीज भैया इसमें ऊपर में जैसे था जब ये उसमें इंसॉल्वेंसी में जा रहा है तो क्रेडिटर अपना सिक्योर्ड पार्ट को वो कर सकता है तो अगर वो माने एक था ना हाँ हाँ, सिक्योर्ड पार्ट को सिक्योर्ड अपना, पार्ट। सिक्योर्ड पार्ट को अपना, सिक्योर्ड पार्ट के लिए उसकी वोटिंग राइट नहीं थी उसकी, हाँ हाँ। है ना, पार्टिसिपेट तो कर सकता था मीटिंग में, हाँ लेकिन वोटिंग मगर राइट नहीं वोटिंग, थी। हाँ तो अगर अगर वो वोटिंग राइट चाहता है तब जाके सिक्योर्ड पार्ट को उस घर में से हटाना पड़ेगा। हाँ, सिक्योर्ड पार्ट को अ, हटाना पड़ेगा। यहाँ हाँ। यहाँ इस बात को समझते हैं ए और बी से, हम्म जो हमने ए और बी अभी पढ़ा सिक्योर्ड की बात। हम्म स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर हम्म हैविंग राइट टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी ही सेल इन द इवेंट ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर बीइंग मेड, गिव अप। देखो ना, यहाँ वर्डिंग चेंज कर दिया है। यहाँ गिव अप, अपनी सिक्योरिटी राइट को ना गिव अप कर दिया है, हम्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स ऑफ द हम्म बैंक्रप्ट, है ना। हम्म और यदि वो गिव अप नहीं करता है तो फिर दूसरी स्टेटमेंट देगा। दो अलग अलग ओके। टाइप की स्टेटमेंट बनी हुई फॉर्मेट। एक हाँ स्टेटमेंट देगा कि दैट द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसिक्योर्ड पार्ट, तो फिर वो हम्म उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी कि जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ जो डेट है उसके हाँ लिए जो है ना, उसके लिए हम्म, अ, वो एप्लीकेशन देगा कि अनसिक्योर्ड पार्ट जो हम्म हमारा जितना है उसके हाँ लिए हाँ अपना ये कर रहा है, हम्म एप्लीकेशन कर रहा है, क्योंकि सिक्योर्ड हाँ पार्ट तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है ही। हाँ सपोज दैट कि किसी क्रेडिटर ने, कैनरा बैंक ने दे दिया 5 करोड़ का लोन हाँ हाँ किसी एसेट को देख करके, ठीक हाँ है। हम्म हाँ, एसेट को देख करके अभी दे दिया कुछ, उसमें से सिक्योर्ड दे दिया, कुछ अनसिक्योर्ड दे दिया, हाँ है ना। तो अनसिक्योर्ड पार्ट हम्म के लिए जो है अपना ये करेगा, हम्म हम्म एप्लीकेशन करेगा। सिक्योर्ड पार्ट हम्म के लिए एप्लीकेशन नहीं करेगा, हम्म उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, उसके हाँ लिए दूसरा लॉ फॉलो करना पड़ेगा। हाँ अगर वो अकेला ही है तो, है हम्म ना, या जो कि हम स्टडी करेंगे बाकी लॉज को भी। हाँ हाँ। हम्म। If a secured creditor makes an application for bankruptcy and submits a statement under clause B of subsection 2, the secured and unsecured part of the debt shall be treated as separate debts. Subsection 4. The creditor may propose an insolvency professional as the bankruptcy trustee in the application for bankruptcy. 5. An application for bankruptcy under subsection 1 in case of a deceased debtor may be filed against his legal representatives.
एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रीन टिक है ना, ये हाँ हाँ इंपॉर्टेंट के लिए है कि भाई हाँ ऐसा केस आ गया है, ऐसी एक क्वेश्चन आ गया कि भाई कि ये डिजीज डेटर जो है एक्सपायर कर गया, डेथ हो गई उसकी, हम्म, तो ऐसा उसकी फाइल को बंद करने की बात बोलेगा। लेकिन हमें हाँ हाँ ये पता रहेगा कि ये हम्म, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में भी फाइल किया जा सकता है। हाँ हाँ केस को उसी प्रकार से हैंडल करेंगे, उसकी जो हमें बात करेंगे जो भी उसी प्रकार से हाँ हाँ करेंगे, है ना। हम्म। 6. The application for bankruptcy shall be in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed. हाँ, इसके लिए रेगुलेशन पढ़ना ही है। हाँ हाँ। 7. एक चीज भैया, ये वाला जो 5 नंबर पॉइंट, ये बैंक्रप्सी के लिए आया है, उसके लिए नहीं आया 5 नंबर पॉइंट ये वाला चीज हाँ, इंसॉल्वेंसी के लिए। इंसॉल्वेंसी के लिए नहीं आया भाई। इंसॉल्वेंसी में तो क्या है ना, इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंस तो तभी पेमेंट। होगा, हाँ इंसॉल्वेंसी तो तभी होगा जबकि, इंसॉल्वेंसी तभी होगा जबकि वो डेटर रहेगा। हाँ हाँ वही तो आखिर ये करेगा मतलब हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है। सेटलमेंट कौन 7। करेगा, सेटलमेंट वही हाँ करेगा। हाँ हाँ। ठीक है, सेटलमेंट वही करेगा। वहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ यहाँ रिकवरी की बात हो रही है और वहाँ हाँ। सेटलमेंट की बात हो रही थी। ओके। रिकवरी होनी है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव से भी ले लेगा, सेटलमेंट हाँ तो हाँ। उसी से ही करेगा। सेटलमेंट उसी से करेगा, रिकवरी दूसरे से भी कर सकते। राइट। ठीक है। 7. An application for bankruptcy by the creditors shall not be withdrawn without permission of the adjudicating authority. सेम, डेटर के केस में भी सेम था। हाँ, हाँ। Section 124. Effect of application. Subsection 1. When an application is filed under Section 122 or 123, an interim mon- moratorium मोराटोरियम। more- moratorium हम्म। shall commence on the date of the meeting of the application on all actions against the properties of the debtor in respect of his debts, and such moratorium shall cease to have effect on the bankruptcy commencement date and be during the interim moratorium period. 1. Any pending legal action or legal proceedings against any property of the debtor in respect of any of his debt shall be deemed to have been stayed. 2. The creditor of the debtor shall not be entitled to initiate any legal action or legal proceedings against any property of the debtor in respect of any of his debts. Subsection 2. Where the application has been made in relation to a farm, the interim moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm as on the date of the making of the application. Subsection 3. The provisions of this section shall not apply to such transactions as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. इसमें कंक्लूड करें इस सेक्शन को। हाँ हाँ। इसमें कुछ अभी नया नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, जैसे कि हमने आईआरपी में हम्म, पढ़ा था, स्टडी की थी। हाँ हाँ कोई भी पेंडिंग लीगल एक्शन है तो वो सारे स्टे हो जाएगी, सब में स्टे लग जाएगा और कोई हाँ हाँ नया लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकेगा इंट्रीम मोराटोरियम होने से, है ना। हाँ 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 इंट्रीम मोराटोरियम कब से माना जाएगा कि इंट्रीम मोराटोरियम हो गया है हाँ। ना। हम्म, फ्रॉम द ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन,
हम्म है ना। और कब माना जाएगा कि ये सीजेस टू हैव इफेक्ट हो गया है? बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट से। अभी हम्म। बैंक्रप्सी कमेंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ बैंक्रप्सी जिस समय कमेंसमेंट हुआ तो इंट्रीम मोराटोरियम वो कंप्लीट हो हाँ जाएगा। हाँ। हम्म, हम्म। सेक्शन 125, अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी। अच्छा सबसेक्शन 1। एक बात हाँ। हमने सेक्शन 122 में और 123 में हम्म प्रपोजल कराया था डेटर से और क्रेडिटर से। हम्म। हाँ हाँ 122 में डेटर ने प्रपोज किया था, 123 में क्रेडिटर ने प्रपोज किया था। लिंक हाँ को हाँ हाँ लिंकिंग ऑलवेज बना के चलना है, आगे करना है कहाँ से हाँ हाँ स्टार्ट हाँ हो रही है कहानी, हाँ हाँ है ना। अभी पढ़ो। हाँ। If if an insolvency professional is proposed as the bankruptcy trustee in the application for bankruptcy under Section 122 or Section 123, the adjudicating authority shall direct the board within 7 days of receiving the application for bankruptcy to confirm that there are no dis- disciplinary proceedings against such professional. ये 7 डे वाली बात, ऑलवेज बोर्ड हाँ 7 दिन लेता है। बोर्ड से हाँ हाँ बोर्ड जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को नोटिस देने के लिए हमेशा हाँ 7 दिन हाँ देगा, देख रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं ना। हाँ 7 दिन। 7 दिन की समय ले रहा है और बोर्ड 10 दिन की समय ले रहा है उसे रिप्लाई करने के हाँ लिए। दो में हाँ हाँ। पढ़ो। The board shall within 10 days of the receipt of the direction under subsection 1 in writing either confirm the appointment of proposed insolvency professional as the bankruptcy trustee for the bankruptcy process, or reject the appointment of the proposed insolvency professional as the bankruptcy trustee for the bankruptcy process, uh, reject the appointment of proposed insolvency professional as the bankruptcy trustee and nominate another bankruptcy trustee for the bankruptcy process. बाकी सब जगह वही बात आ रही थी। हाँ चेकिंग वही है। किया, बोर्ड ने चेक किया, 10 दिन के अंदर में समय लिया, उसमें अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया और या रिजेक्ट करके दूसरे नया को। नया नॉमिनेट कर दिया कि भाई इसके हाँ। बदले में आप ये मैं नाम दे रहा हूँ आईबीबीआई हम्म। में, है ना। हाँ। 3. Where a bankruptcy trustee is not proposed by the debtor or creditor under Section 122 or 123, the adjudicating authority shall direct the board within 7 days of receiving the application to nominate a bankruptcy trustee for the bankruptcy process. एकदम बिल्कुल सिंपल है। पहला 1-2 में प्रपोजल दिया गया था, ठीक है ना, और हाँ उसी हाँ के आधार पर चेकिंग किया गया, एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया। 3 और 4 सिंपल है बिल्कुल। 3-4 में हाँ डेटर ने क्रेडिटर ने नाम नहीं दिया किसी का, तो बोर्ड ने एडजुडिकेटिंग अपने। अथॉरिटी बोर्ड से रिक्वायरमेंट ले लिया 7 दिन के अंदर में कि भैया आप मुझे हाँ नॉमिनेट करके दो। 10 दिन के अंदर में हम्म, बोर्ड नॉमिनेट भी कर देता है ना। हाँ। 5. The bankruptcy trustee confirmed or nominated under this section shall be appointed as the bankruptcy trustee by the adjudicating authority in the bankruptcy order under Section 126. Section 126, bankruptcy order. The adjudicating authority shall pass a bankruptcy order within 14 days of receiving the confirmation of nomination of the bankruptcy trustee under Section 125. Subsection 2. एक मिनट एक The मिनट ad- एक मिनट। 1 तारीख को अप्लाई हुआ, ठीक है ना। हम्म, फर्स्ट डे में, डे 1 में अप्लाई हुआ। डे हाँ 7 में बोर्ड ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने
पता किया बोर्ड से, ठीक है ना। हाँ हाँ डे 17 में 10 के बाद और 17 दिन के बाद में अ, हाँ बोर्ड ने नाम दे दिया हम्म, या कंफर्म कर दिया, हाँ ठीक है ना। हम्म, कंफर्म कर हाँ दिया हम्म, तो कितना मतलब हुआ, T17 ना, टी हाँ सेवनटीन T7 प्लस फोर्टीन यहाँ टी हाँ सेवनटीन प्लस फोर्टीन चल रहा है। हाँ T17 प्लस फोर्टीन हाँ कितना हो गया, 31 दिन हो गया क्या। 31वें दिन जो है स- हाँ बैंक्रप्सी ट्रस्टी ऑर्डर पास हो गया। हम्म, ठीक है, पढ़ो। हाँ The adjudicating authority shall provide the following documents to bankrupt creditors and bankruptcy trustees within 7 days of the passing of the bankruptcy order, namely copy of the application for bankruptcy and B. The copy of bankruptcy order. 10 मिनट, अभी हम्म, 14 दिन के अंदर में 14, 31वें दिन जो है 14 दिन के अंदर में बैंक्रप्सी ऑर्डर पास हो हाँ गया। हाँ बैंक्रप्सी ऑर्डर पास तो हो गया। अब हम्म, ऑडिटिंग अथॉरिटी शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बैंक्रप्ट और क्रेडिटर एंड क्रेडिट बैंक्रप्सी ट्रस्टी। हाँ तीन लोग ही तो है, इंसान हाँ तीन है उधर में। एक तो बैंक्रप्ट जो हुआ है डेटर, एक क्रेडिटर, एक बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है ना। हम्म, उसे वो हाँ ऑर्डर पास कर दिया विद इन 7 डे, हाँ 31 और 7, 38वें दिन में, 38 दिन हाँ बाई पासिंग द, नोट भी करते जाना ये सारी चीज। फिर उसी हम्म, पूरी एक स्टोरी बनाएंगे हम लोग। हाँ कितने कितने में दिन में हो रही है काम। हाँ कॉपी एप्लीकेशन ऑफ बैंक्रप्सी, कॉपी ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर। एक तो हम्म, एप्लीकेशन किया गया, उसकी कॉपी दे दी हम्म, गई वापस से, हम्म, और एक हाँ हाँ बैंक्रप्सी ऑर्डर। हाँ हाँ अभी सेक्शन 127 पढ़ो। 127 Validity of bankruptcy order. The bankruptcy order passed by the adjudicating authority under Section 126 shall continue to have effect till the debtor is discharged under Section 138. 138 में डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होगी सारी सारी संपत्ति वगैरह डिस्पोज ऑफ होने के बाद में, तब तक ये बैंक्रप्सी ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, है ना। हाँ, अब इसकी इफेक्ट क्या होती है, देख लो इफेक्ट क्या होगा इसमें, किसके ऊपर में क्या प्रभाव आएगा। हाँ। On the passing of the bankruptcy order under Section 126A, the estate of bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee as provided in Section 154. The estate of the bankrupt shall be divided among his debtors. C. Subject to provisions of subsection 2, a creditor of the bankrupt indebted in respect of any debt claimed as a bankruptcy debt shall not one initiate any action against the property of the bankrupt in respect of such debt or commence any suit or other legal proceedings except with the leave of the adjudicating authority and on such terms as the adjudicating authority may impose. Subsection 2. Subject to the provisions of Section 123, the bankruptcy order shall not affect the right of any secured creditor or realize or otherwise deal with his security in interest in the same manner as he would have been entitled if the bankruptcy order has not been passed, provided that no secured creditor shall be entitled to any interest in respect of his debt after the bankruptcy commencement date if he does not take any action to realize his security within 30 days from the said date.
Subsection 3. Where a bankruptcy order under Section 126 has been passed against a firm, the order shall operate as if it were a bankruptcy order made against each of the individuals who, on the date of the order, is a partner of the firm. For subsection 4, the provisions of subsection 1 shall not apply to such transactions as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. इंक्लूड कर लें इसे। हाँ। तो सारी पावर ए में चली जा रही है, पहले सबसेक्शन 1 में सारी पावर तो चली जा रही है बैंकरप्सी ट्रस्टी के अंदर में, ठीक है। हम्म सारे स्टेट डिवाइड होंगे, ये भी नॉर्मल बात है, इसमें कुछ भी स्पेशल बात नहीं है। सी हम्म में है कि क्लेम इनिशिएट, कोई एक्शन नहीं लेगा क्रेडिटर। हाँ हाँ क्रेडिटर के एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन ले हाँ चुका है ना हाँ ऑलरेडी। डेटर हाँ ने तो हाँ ऑलरेडी खुद एक्शन ले लिया है अपने लिए, या क्रेडिटर ने, किसी एक क्रेडिटर ने ले लिया है एक्शन। हाँ, और क्या एक्शन, डबल डबल थोड़ी नहीं लेगा एक्शन। हाँ, अगर कोई हम्म एक्शन ले सकता है कोई सूट एंड प्रोसीडिंग से, किसी और एक मामला में हम्म सूट अलग अलग भी केस हाँ चल सकते हैं, हम्म कि लेकिन उसके लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी होगी कि ये हाँ हाँ मामला हाँ मैं अलग से चलाना चाहता हूँ, ये कुछ कारण हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, है ना। हम्म इसी कारण से अगर लीव दे दिया, परमिशन दे दी गई। हाँ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन विच विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। हम्म बैंक्रप्सी ऑर्डर से सिक्योर्ड क्रेडिटर की जो राइट है ना, हाँ हाँ वो सिक्योर, वो अपने हिसाब से अपने एसेट रियलाइज करेगा। हम्म हाँ, ओके। प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी इंटाइटल, कोई बैंक है उसने अपनी ये कर रखी है, सिक्योरिटी लगा रखी है, तो वो हम्म अपनी सरफासी एक्ट, जो भी एक्ट के हिसाब से रिकवरी ऑफ हम्म डेब्ट हम्म वाली जो एक्ट है, उस एक्ट को हम्म, लगा करके वो अपनी प्रोसीडिंग चलाएगा, हाँ ठीक है ना। हम्म हाँ, secured creditor shall be entitled to any interest due date after the bankruptcy clause if he does not take any action to life security within 30 days of the said date। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने भाई कोई एक्शन नहीं लिया, हम्म, 30 दिन के अंदर में, ठीक है ना, हाँ हम्म तो फिर क्या होता है, 30 दिन के अंदर में अगर उसने एक्शन नहीं लिया ना, तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो हम्म खुद से अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये लड़ाई जो हम्म है बैंक्रप्सी ट्रस्टी को इसी ऑर्डर के अंदर में करनी है, उसने छोड़ दिया। जो जो भी हम्म बैंक्रप्सी ट्रस्टी करेगा उसके हिसाब से हम्म, चलेगा, ओके। ठीक है ना, उसके ऊपर में 30 दिन की हाँ बात। हाँ हाँ तो अभी हम लोग 31 और 8, 31 और 7, 38, 38वें दिन थे क्या, हाँ 38, हाँ 38 दिन और 30 दिन, 38 और 30 दिन के अंदर में अगर नहीं किया, हम्म नहीं, ये बैंक्रप्सी कमांसमेंट डेट से 30 दिन है, तो वो देखना पड़ेगा, एक हमें लेके टाइम लाइन बनानी पड़ेगी। हम्म बना लेंगे, कोई बात नहीं है। हम्म, वेयर बैंक्रप्सी ऑर्डर इज, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, इस सेक्शन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, जो हमने सेबी की एग्जांपल दी थी, हाँ हाँ। ठीक है। Section 129 Statement of Financial Position. Subsection 1. Wherein bankruptcy order is passed on the application for bankruptcy by a creditor under Section 123, the bankrupt shall submit his statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date.
2. The statement of financial position shall be submitted in such form and manner as may be prescribed. 3. Where the bankrupt is a firm, its partners on the date of the order shall submit a joint statement of financial position of the firm, and each partner of them shall submit a statement of his financial position. 4. The bankruptcy trustee may require the bankrupt or any other person to submit in writing further information explaining or modifying any matter contained in the statement of financial position. Section 130. Public notice inviting claims from creditors. Subsection 1. The adjudicating authority shall send notices within 10 days of the bankruptcy commencement date to the creditors mentioned in 1. The statement of affairs submitted by the bankrupt under Section 129, or 2. The application for bankruptcy submitted by the bankrupt under Section 122. B. Issue a public notice inviting claims from creditors. Subsection 2. The public notice under Clause B of the Section 1 shall include the last date up to which the claims shall be submitted and such others, matters, and details as may be prescribed, and shall be a published in leading newspaper, one in English and another in vernacular, having sufficient circulation where the bankrupt resides. B. Affix the premises of the adjudicating authority, and C. Placed on the website of the adjudicating authority. Subsection 3. The notice of the creditors referred to under Clause A of subsection 1 shall include such matter and details as may be prescribed. कंक्लूड कर लें. Hmm. पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम फ्रॉम क्रेडिटर्स. सपोज दैट कि किसी क्रेडिटर्स ने, मान लो दो चार क्रेडिटर्स ने मिलकर के ये बैंक्रप्सी की फाइलिंग कर दी, हाँ. ठीक है ना. मगर क्या है कि इसके और अलावा भी कैटर हो सकता है प्रॉपर्टी के अलावा उन भी और लोगों भी से होगा। क्रेडिटर्स होते हैं. पब्लिक को भी और दे दिया जाता है भाई, इनकी जो भी हैं, एक न्यूज में दे हाँ दिया हाँ. जाता है कि भाई ये बैंकरप्ट हो रहा है मिस्टर बीके. हम्म. तो हाँ. और भी कोई क्लेम करने वाला है तो आ जाइए. तो इसके लिए 10 दिन में, बीकेटी कमेंसमेंट डेट से 10 दिन के में अंदर में ये नोटिस दी जाती है. हम्म. हाँ. सो सेंड नोटिस यहाँ पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग, सेंड नोटिस विद इन 10 डे अफेयर्स. हम्म. bankruptcy application for the submitted by the issue public notice. B number, issue a public notice inviting claim from creditors. अच्छा, दो प्रकार की नोटिस है, दो प्रकार की हम्म. नोटिस है. एक तो नोटिस दिया जाता है टू द डेट, टू द क्रेडिटर्स, स्पेसिफिक क्रेडिटर्स को दिया जा रहा है, ठीक है ना. हाँ हाँ. मेंशन इन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में है ऑलरेडी, इनका आता हाँ. पता सब दिख रहा है. हम्म. द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी फाइल किया गया होगा कि भाई ये क्रेडिटर्स हैं, इसके ये अगेंस्ट में हमने बैंक्रप्सी फाइल हम्म. की गई है, ठीक है ना. ये हम हम्म. लोग मिलके कर हाँ. रहे हैं, डॉक्यूमेंट में जो हम्म. दिख रहे हैं. साथ ही हाँ. साथ ये एक पब्लिक नोटिस भी दे देने का, हाँ. ठीक है ना. पब्लिक नोटिस भी दे देंगे.
और उसमें इंक्लूड हम्म, कर देंगे लास्ट डेट में, कब तक जो है, कब तक आपको नोटिस का रिप्लाई दे देना है। हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन यहाँ एक बात है कि टाइम नहीं दिया गया। हम्म, टाइम नहीं दिया गया, हो सकता है नीचे दिया जाए, नीचे मिल जाए। यहाँ सिर्फ लास्ट डेट दे करके छोड़ दिया हम्म, गया। फिक्स, अच्छा, फिक्स्ड ऑन द प्रोमाइसेस ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एनसीएलटी की ऑफिस है ना, हाँ हाँ, वहाँ भी एक नोटिस बोर्ड में लगी रहती है। ओके, उनकी वेबसाइट जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, एनसीएलटी की वेबसाइट चेक करेंगे, हाँ, वहाँ भी हमें मिल जाएगी ये सारी हम्म, नोटिस, एनसीएलटी की हम्म, नोटिस। हम्म, ठीक है, देख लेंगे एक बार प्रैक्टिकल में हाँ, हम्म, तो नोटिस किसके किसके लिए लगी हुई है ना। हम्म, नोटिस टू हाँ, द क्रेडिटर shall include the mention the matter delayed as may be prescribed। ठीक है, ये हो गया। हम्म, तो अभी 130 तक रखते हैं, 130, हाँ, 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 और बाकी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू हम्म, करेंगे, है ना।